Some days don't need a big plan, they just need the right company and the right destination. And today was one of those days. Me and my wife decided to take a break from the usual routine and go for a peaceful drive to Howth, one of the most beautiful coastal places in Ireland. Honestly, sometimes all you need is a short road trip to feel alive again. So we got into the car, picked our music, and started driving. There's something about car journeys that always feel exciting. It's not just about reaching the destination, it's about the conversations on the way, the random songs, the jokes, the small moments, and when you're traveling with someone you love, even the road becomes part of the memory. The weather today was absolutely beautiful. Clear skies, cool breeze, and just enough sunshine to make everything look extra magical. Ireland can be unpredictable with weather, so when you get a day like this, you just have to make the most of it. As we got closer to Howth, the scenery kept getting better. The roads, the sea views, the little houses, the peaceful vibe, everything slowly started changing. And you could already tell this was going to be a good day. The moment we entered Howth, the harbour instantly grabbed our attention. It's one of those places where you feel calm the second you arrive. The boats were parked peacefully in the water, seagulls flying everywhere, the sound of the waves hitting the harbour walls, and that fresh, salty air. It just hits differently. It felt like time slowed down for a bit. We walked around the harbour, taking in the views, clicked some pictures, made some videos, and honestly, every corner looked beautiful. Howth has this charm that's hard to explain. It's simple, it's peaceful, and it feels real, not crowded, not rushed, just natural beauty. The weather made everything even better. The sun was shining, the breeze was perfect, and the sky looked so clear. It was one of those rare days where everything just felt right. Sometimes the best parts of traveling are the things you don't plan. After that, we decided to go for the trek. And this is where Howth really shows its magic. The trek started easy, but as we kept climbing, the views kept getting better and better. Every few steps, we had to stop. Not because we were tired, but because the scenery was just too beautiful to ignore. The cliffs, the sea, the endless blue water, the green landscapes. It honestly felt unreal. Standing there at that height, with the wind blowing and the ocean stretching endlessly in front of us. It felt peaceful in a way that's hard to describe. There's something powerful about nature. It reminds you how small you are, and somehow, that makes your problems feel smaller too. The trek itself was such a fun experience. A little tiring, yes, but worth every step. We kept motivating each other, joking around, and just enjoying the climb. That's the best thing about doing these adventures together. You push each other, you laugh together, and every challenge becomes part of the memory. At some points, the wind was so strong we could barely stand properly. And of course, that made for some funny moments, trying to balance, laughing at each other, hair flying everywhere. तो अभी हम जा रहे हैं साइड से। देखो ऐसे होती है सड़क, नॉर्मल क्लिफ वॉक है, साइड पे चल रही, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है। इसको गर्मी लग रही है, इसने आधी जैकेट पहन रखी है, आधी जैकेट उतार रखी है। देखो वो वहाँ तक वॉक है, चलते रहते हैं यहाँ पे। ऊपर भी ऊपर जाएंगे तो वापस चला होगा, चलो चलते ऊपर। चलो जी चलते हैं, देखो ऊपर से और भी देखते हैं। देखो ऊपर, पहले जब मैं आया था तो ये गाइडेड नहीं थी, अब ये गाइडेड है। बाई सिंह गाइडेड में देखो यहाँ पे रोप लगे हुए हैं साइड में। अगर आप मेरी पहले वीडियो देखो तो उसमें नहीं थी। सो गाइज अब हम क्लिफ वॉक कर रहे हैं हाउथ में।
तो मैंने कहा आपको बता दूं, हम आए हैं कार से, जो आपने आपने देख लिया होगा एंट्री में। तो इस बार कार से आने का इंटेंट ये था कि मैं डाट से भी आया हूँ, बस से भी आया हूँ, तो मैंने कहा इस बार कार से आते हैं। तो मैंने अवॉइड किया टोल रोड लेने के लिए, जिससे कि मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। पेट्रोल भी खैर होता है, जो भी शुरू होता है, पर मैं टोल पे खर्चा नहीं करना चाहता था। तो कार से आए, 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट है डबलिन 12 से, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो और आप मान के चलो बेर मिनिमम 1.5 घंटा तो है ही, पकड़ के पार्किंग पकड़ के चलो तो। और अगर किसी को आना है तो सिटी सेंटर से भी आपको ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो अच्छी जगह है, अगर आप देख सकते हो। ये देखो पीछे व्यू कितना अच्छा है, पूरा पैन कर देता हूँ। तो ये वॉक है, आप अगर आपको मौसम अच्छा है मिल रहा वीकेंड पे, जो कि चांसेस कम ही होते हैं सनी होने के, तो मैंने कहा मिल रहा है मौका, तो खुद घर में बैठने से अच्छा थोड़ा सा बाहर वॉक ही करके आ जाएंगे। ओके, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो जॉब ही होती है, इसमें निकल जाता है टाइम, और मैं तो कमरे के अंदर ही होता हूँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही है टोटल। तो अभी मैं आपको और बताता हूँ। कितनी प्यारी वॉक है, बिल्कुल समुद्र के किनारे से है। पीस वॉक बोलते हैं इसको। ये देखो ओपन हो गया। अब हम आ चुके हैं पॉइंट पे, तो अब हम यहाँ से वापस होंगे, क्योंकि हम गाड़ी दूर छोड़कर आ गए हैं, तो वापस भी आना होगा। ये वॉक आगे भी जाती है, तो दूसरी तरफ उतर जाती है ये। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फिर यहाँ से पूरा व्यू जो है, तो अब हम हाउस से वापस जाने के लिए निकल गए हैं। तो जैसे आकाश ने आपको बताया था कि हम गाड़ी से आए थे, तो गाड़ी से आने का एक ड्रॉबैक ये होता है, पहले तो आपको पार्किंग मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और दूसरा जब हम क्लिफ पे जा रहे थे जहाँ पे हमने पार्क करा था, और क्लिफ बहुत बड़ा था, इट वॉज रियली ह्यूज, और ताकि हम भूल ना जाए कहाँ पे पार्किंग है, तो इसलिए हमको मिड पॉइंट से ही वापस आना पड़ा। तो ये एक ड्रॉबैक है गाड़ी से आने का, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। Otherwise, it was a really nice and good trip and I enjoyed a lot. बहुत अच्छा व्यूज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू पॉइंट, बहुत अच्छे हैं। तो जो ट्रस्ट में, शायद मैं ये 2 या 3 बार आई हूँ यहाँ पे, और हर बार मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है यहाँ पर।
and this time I explored a totally different house here, and it's very good and very beautiful. So how about Akash, how do you feel? मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर हाउ विद कार, अपनी खुद की कार से करनी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। नहीं तो मेरा आज भी मन था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का, बिकॉज आपको सीनिक ब्यूटी मिलती है और एक लाइबिलिटी नहीं होती कि आप दे पाए, वो नहीं है कि आपको एक सामान ध्यान रखना है। तो मैंने कार पार्क में कार लगाई अपनी, एक बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे कार पार्किंग की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लकीली हमें मिल गई और फिर हमें वहाँ पे कार पार्क करने के बाद हम फिर गए वॉक करने क्लिफ की। तो हमने हाफ वॉक करी, हाफ क्लिफ तक, और फिर ऑब्वियसली अगर आगे जाते तो वापस उसी रास्ते पे आना होता, तो हमारे पास और भी काम थे सिटी के। तो अभी हम वापस जाएंगे, कार पार्क करेंगे घर में और फिर हम सिटी निकलेंगे। तो बस यही एक डिपेंडेंसी है आप अपने उसकी ट्रांसपोर्ट की, कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो ये चीज़ है, पर इट्स ए डिफरेंट व्यू, लास्ट टाइम से डिफरेंट व्यू था आज हमारा जाने का, और देखने का अच्छा था। और अच्छा वेदर, एक्चुअली मेन होता है पर्पस वेदर का, चीज़ें वही होती है, नज़रिया डिफरेंट होते हैं लोगों के देखने के। तो अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आएंगे नई वीडियो के साथ आपको लेकर। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में मैं काफ़ी बिजी हुआ हूँ। तो पर आपके लिए बहुत जल्दी बहुत सारे इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ स्टूडेंट्स के, जो अलग अलग कोर्सेज में हैं और जो विल आपको आगे वो करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अच्छी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड नाइट, गुड इवनिंग, एंड ध्यान रखिए अपना। बाय। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो का एंड। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे आपको स्टूडेंट लाइफ की चाहिए या कोर्सेज के बारे में या फ़ीस के बारे में, यहाँ के अकोमोडेशन के बारे में या कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ताकि हम उनके लिए वीडियोस बना पाएँ। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसको शेयर भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा नवंबर का फर्स्ट सैटरडे। सी यू, बाय बाय।